Hello everybody, this is me Arpita Pal, your educator, and I welcome you all to Arpita Sharma classes. If you have not yet subscribed to Arpita Sharma classes, do go through the channel and subscribe to the channel. Also press the bell icon to get the latest updates. Now, in this series we have dealt with various important topics, जैसे कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे important topics जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एक्सेट्रा कवर किए हैं. आज हम लोग इस सीरीज का लास्ट लेक्चर जो है वो देखेंगे, जिसमें हम यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, उसके क्या रिपरकशंस थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो सब पढ़ेंगे. बट बिफोर बिगनिंग आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल, दैट इज अबाउट अनअकैडमी एस्पायर. नाउ सी, अनअकैडमी presents Aspire, which is a free test series for UPSC CSE preparation. It will not only cover the mock tests by top educators and experts, but also have the exact same pattern as that of UPSC prelims examination, and that too with detailed performance report and competitive stats to let you evaluate your progress. Now, Unacademy Aspire will take place 4 times a month, right? So, let's look at the plan. 4 times on various dates like 1st, 10th, 25th and 30th of every month, that too at 10 am. Let's look at the plan first. 1st November, free mock test covering the current affairs curated by experts to test your proficiency. 10th November, free full-length mock test on the same pattern as UPSC prelims paper 1 for GS. On 25th November, free full-length mock test on the same pattern as UPSC CSE prelims paper 1 GS. And on 30th November, free mock test covering UPSC CSE prelims paper 2, that is CSAT. Now CSAT should not be ignored now, we have very well understood this. So CSAT is also being covered in the test series. Unacademy Aspire also rewards you for excellence or for excelling in these tests. To avail the prizes, the test needs to be attempted live. So you need to attempt the test live. If you are not attempting the test live, then you might miss the chance to get prizes and win scholarships. Now, also apart from this, now we need to discuss why should you take the test? Because it is curated by top educators, has a detailed performance report to tell you where you stand and also compare it with your friends and prepare better. Also, you can have a chance to win exciting prizes up to 15 lakh per month. Now, that's a huge amount. Now, the question arises how to enroll. You need to download the Unacademy Learning app, register or sign up in the app, click on the link shared in the description box and click on enroll for all the 4 tests and all set. So you are done with it. I hope you will enroll for the same and win exciting prizes. Now let's begin. See, today we will be discussing about the disintegration of USSR. इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर देखा था उसमें आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि यूएसएसआर की सिचुएशन क्या हो गई थी, वहाँ पर रिफॉर्म्स हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, या फिर जो वर्ल्ड था वो किस तरह से बाइपोलर हो गया था. वी हैड बाइपोलर वर्ल्ड. बाइपोलर वर्ल्ड में भी कौन से दो पोल्स थे या कौन से 2 पावर्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, जिसमें भी यूएसए वॉज अलाइंड विद नाटो, whereas US had satellite states, right? तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से बाइपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, फिर बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से किस तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड में भी किसका डोमिनेंस हो गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डोमिनेंस हो गया था. ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं. Now in this lesson we will be discussing about USSR. Why did USSR disintegrate? ऐसा क्या हुआ था कि जो इतने ग्रुप ऑफ नेशंस था जो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड में, एक पावर बन गया था, ऐसा क्या हुआ कि वही डिसइंटीग्रेट हो गया? See, firstly we need to understand what was the Soviet Union. See, USSR was the union of Soviet Socialist Republic, that is known as USSR. And अगर देखा जाए तो ये इसकी शुरुआत तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद से ही हो गई थी. मतलब ये बनना रशियन रेवोल्यूशन, हम लोग 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन है वो पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन की स्थापना होने लग गई थी, उसका एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो गया था. ऑल्सो द सोवियत यूनियन वॉज लेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. Now, communism was on a rise in Europe and Russia and various other nations, that we very well know that Russia was a communist state. So, Communist Party led the Russian Revolution as well.
ऑल्सो द स्टेट कंट्रोल ऑल इकोनॉमी और द होल इकोनॉमी इन रशिया। अब सोवियत यूनियन में अगर देखें तो सारी जो इकोनॉमी है वो स्टेट कंट्रोल थी, वो तो अंडरस्टूड ही है क्योंकि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ स्टेट के पावर या स्टेट के अंडर होता है, सारी पावर स्टेट के पास होती है। दिस सोवियत यूनियन वॉज लेटर ज्वाइन बाई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि कम्युनिज्म को फेवर करती थी, उन्होंने भी बाद में सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। अब फीचर्स क्या थे सोवियत यूनियन के? फर्स्टली इट हैज वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्स नेशन था, या एनर्जी रिच जो वहाँ पे रिसोर्सेज थे, तो वहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए ट्रेड भी अच्छी होती थी। ऑल्सो जो 15 नेशंस थे जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट थे, उसमें रशिया डोमिनेंट था। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर ऑन अ राइज, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट इट हैड इंफीरियर टेक्नोलॉजी देन यूएसए। जो टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, तो टेक्नोलॉजी में यूएसए से यूएसएसआर लैग कर रहा था। Also, the people were not happy. Why people were not happy with USSR? Because there was no democracy. अब भाई अगर कम्युनिस्ट कंट्री है, सब कुछ अगर सारी पावर स्टेट के हाथ में है, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम या ग्रेजुअली हम कहें तो जो स्टेट है वो डिक्टेटोरियल हो जाएगा, हो सकता है वहाँ पे एनार्की डेवलप हो जाए। That is why the people or the public of Russia or the people of Soviet Union were not happy because they lacked democracy. उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, प्रेस सेंसरशिप थी, प्रेस को अपनी आज़ादी या नहीं थी, या फिर प्रेस को बोलने की आज़ादी नहीं थी। कोई भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था तो उन्हें प्रोसिक्यूट या फिर सप्रेस कर दिया जाता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज कर्टेल, ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव था जो भी रूल था। तो सोवियत यूनियन की अगर बात करें तो भले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे एनर्जी रिसोर्सेज थे और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी राइज कर रही थी, बट जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो क्या थे कि एक तो डेमोक्रेसी नहीं थी, और अगर किसी भी रीजन में डेमोक्रेसी नहीं है तो नेचुरली वहाँ की जनता या वहाँ के लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रही है, आप एक अथॉरिटेटिव कंट्री है, ब्यूरोक्रेटिक रूल ज़्यादा है, तो जब आज़ादी नहीं है तो लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। Also, the attack by the Soviet Union on Afghanistan led to a decline in technology and productivity of the nations. अब जब आप किसी भी एक्सटर्नल या किसी फॉरेन पावर पे या किसी भी कंट्री पे अगर आप अटैक कर रहे हैं तो नेचुरली आपके रिसोर्सेज जो है वो खर्च होंगे, तो आपकी टेक्नोलॉजी पर भी डिक्लाइन आएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज, सारा रेवेन्यू तो वॉर में ही लगा दिया, तो आपकी अपनी कंट्री के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की सिचुएशन आ गई थी और इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। तो अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए क्या किया? मिखाइल गोर्बाचेव, हु बिकेम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन रशिया, so he came to power. Now what did he want to do? He wanted to bring reforms and democracy. He realized कि भाई अब तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की सिचुएशन आ गई है, अगर मुझे कम्युनिस्ट इकोनॉमी को बचाना है तो मुझे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और डेमोक्रेसी की तरफ भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग खुश नहीं हैं तो हम एक स्टेट को नहीं चला सकते, तो डेमोक्रेसी तो होनी ही चाहिए। या तो आप फिर पूरे डिक्टेटरशिप रखें, फिर आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेट कर रही है तो उसको होने दें, अदरवाइज या तो फिर आप एक बहुत ही बड़ी कैपिटलिस्ट नेशन हो, कैपिटलिस्ट पावर हो, पर ऐसा यहाँ पर था नहीं, इट वॉज अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। So Mikhail Gorbachev thought that it is better to bring reforms and then revive the communist economy of the country. So this was not liked by communist leaders. Now why this was not liked by communist leaders? Naturally, see communist leaders क्या चाहते हैं कि हमारे पास पूरी पावर रहे या हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सबका कंट्रोल हमारे पास रहे, लोगों का जो सत्ता है वो हमारे हाथ में ही रहे। अब अगर रिफॉर्म्स आएंगे, डेमोक्रेसी आएगी, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा या फिर लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। जब आपको आज़ादी मिलेगी तो हो सकता है कि जो आप इस तरह की डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट भी बोलना शुरू कर दें, बोलेंगे तो फिर ऑपोजिशन जनरेट होगा, ऑपोजिशन होगा तो वहाँ पे पार्टी रूल आएगा, मल्टी पार्टी और डुअल पार्टी रूल आएगा, जबकि यहाँ पर अभी तक ऐसा रशिया में था नहीं है, सोवियत यूनियन में ऐसा नहीं था, अभी तक सिर्फ एक सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रूल था। पर अगर डेमोक्रेसी आएगी तो हो सकता है कल को इलेक्शंस हो तो ऑपोजिशन भी जनरेट होगा, ऑपोजिशन होगा तो मल्टी पार्टी रूल आएगा, और इस तरह से कम्युनिस्ट लीडर्स जो अपनी सत्ता है वो खो देंगे। Hence, this was not liked by communist leaders. They realized that if we have democracy, then our power will definitely go in vain or we will have to lose the position. As a result, 1991 में क्या हुआ, एक मिलिट्री कू हुआ और गोर्बाचेव को रिमूव कर दिया गया, बिकॉज गोर्बाचेव वॉज द ओनली पर्सन हु वांटेड रिफॉर्म्स इन द कंट्री, सो ही वॉज रिमूव्ड। देन अब दिखाने के लिए भाई इलेक्शंस तो रख लिए गए, ठीक है, क्योंकि बोरिस और येलिस्तान जैसे जो नेशंस है वो इमर्ज हुए, सो इलेक्शंस रखे गए। पावर मूव टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप के जो नेशंस थे वो कुछ जो नेशंस थे वो ऑलरेडी कम्युनिस्ट रशिया के साथ आ गए थे, सोवियत यूनियन के साथ आ गए थे,
December 1991, the Soviet Union was led by Yeltsin, but the result was that Soviet Union को बैन कर दिया गया। भले ही वहाँ पर येल्स्टीन गवर्नमेंट आ गई थी, या जो येल्स्टीन थे वो सोवियत यूनियन को गवर्न कर रहे थे, बट सोवियत यूनियन को बैन कर दिया गया और हुआ ये कि डेमोक्रेसी आ गई। अब डेमोक्रेसी के आने के बाद वहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस भी बनाया गया, जिसको रशिया लीड कर रहा था, बिकॉज रशिया थॉट अब मेरे पास पावर तो है नहीं, तो इट्स बेटर कि मैं अपना एक अलग ग्रुप बनाऊं जिनको कम से कम लीड तो करूं। सो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस वाज फॉर्म्ड एंड रशिया वाज लीडिंग इट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब ऐसे सोवियत यूनियन टूट गया या फिर येल्सिन ट्रीटी के बाद जिस तरह से जो डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, क्योंकि सोवियत यूनियन को तो बैन कर दिया गया, अल्टीमेटली जो लोग थे वहां पर यही चाहते थे कि डेमोक्रेसी आ जाए। सोवियत यूनियन के बैन करने के रीजंस क्या थे, या फिर ऐसा क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत यूनियन? फर्स्टली द रिफॉर्म्स बाय गोर्बाचेव। अब गोर्बाचेव तो चाहते थे कि मैं रिफॉर्म्स करूं कंट्री की भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए, बट दिस वाज नॉट लाइक बाय द कम्युनिस्ट लीडर्स, इसलिए जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो अराइज हो गए। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की सिचुएशन थी। अब नेचुरली अगर एक रीजन में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है या बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में अगर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है तो सारे ग्रुप्स यही सोचेंगे कि इट्स बेटर कि हम ये ग्रुप तोड़ दें और इंडिविजुअली अपना जो लाइफ है वो लीड करें। दैट इज वाई डिसइंटीग्रेशन टुक प्लेस। उन्होंने सोचा, या जितनी भी कंट्रीज थी सोवियत यूनियन में, उन्होंने सोचा कि इट्स बेटर साथ रहने से अगर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ रहा है, इट्स बेटर दैट वी गेट सेपरेटेड एंड लिव अ इकोनॉमिकली स्टेबल लाइफ। रशियन डोमिनेशन बहुत ज्यादा था। अब जो सोवियत यूनियन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट वाज डोमिनेटेड बाय रशिया। तो अगर आप इतना ज्यादा डोमिनेट करेंगे तो अल्टीमेटली इट वुड लीड टू अ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन तो नहीं हुआ, बट डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब स्लो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था। रिफॉर्म्स तो चाहते थे गोर्बाचेव, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ज्यादा स्लोली काम कर रहा था, फास्टर रिफॉर्म्स नहीं आ रहे थे। और आज के जमाने में या उस जमाने की भी अगर बात करें 90s की, तो हर किसी को चाहिए था कि रिफॉर्म्स जल्दी आए या फिर जो भी चेंजेस हो जल्दी हो, बिकॉज एवरीबडी कुडंट वेट सो लॉन्ग। सो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्लो चल रहा था, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन की सिचुएशन आ गई थी, एंड फाइनली द एनलाइटनमेंट ऑफ सिटीजन्स। अब अगर किसी भी कंट्री के या किसी भी नेशन के सिटीजन्स एनलाइट होंगे, अगर वो एनलाइटन हो जाएंगे तो नेचुरली रिफॉर्म्स तो होंगे ही, रेवोल्यूशन तो होगा ही, विच अल्टीमेटली लेड टू नॉट टू अ वॉर बट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। I hope I have made my point clear. This was a very small lecture, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से सोवियत यूनियन बना था, या क्या एक समरी हम डिस्कस कर चुके थे। So I hope I have made my point clear. In case of any query, do mention in the comment section. Thank you.